اسلام آباد مارچ کب کرنا ہے؟ پرسوں تاریخ دوں گا۔ 25 سے 29 تاریخ کے درمیان حقیقی آزادی مارچ ہوگا۔ عمران خان کا اعلان، کہا اسلام آباد مارچ میں صرف ایک مطالبہ ہوگا، بتایا جائے اسمبلی کب تحلیل اور الیکشن کب ہوں گے۔ اب بات سیاست سے اوپر چلی گئی ہے۔ اسلام آباد میں عوام کا سمندر دیکھ رہا ہوں، ایکس سروس مین اور فوجیوں کے اہل خانہ بھی میرے ساتھ نکلیں گے۔ عوام کو تیاری کا وقت دینا چاہتا ہوں۔ پاکستانیوں، ہم نے امریکہ اور اس کے غلاموں کو کسی صورت قبول نہیں کرنا۔ مریم نواز نے اتنی بار جوش و جذبے سے میرا نام لیا، کہیں اس کا شوہر ناراض نہ ہو جائے۔ میں نے ان کا کیا بگاڑا ہے؟ عمران خان مریم دیکھو، تھوڑا دھیان کرو، تمہارا خاوند ہی ناراض نہ ہو جائے جس طرح تم بار بار میرا نام لیتی ہو۔ بار بار پیغام آیا کہ آپ کی جان کو خطرہ ہے، آگے شیشہ لگا لیں۔ کرپٹ اور بزدل حکمرانوں نے ہمیں خوف دلوایا ہوا ہے۔ کہا جاتا ہے جب تک امریکہ کے جوتے پالش نہیں کریں گے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کہتے ہیں یہ اتنی ڈرپوک حکومت کہ فضل الرحمان اور پیٹرول کی قیمت بڑھائی جائے گا نہیں۔ عوامی رد عمل کا یہ سارا بوجھ فوج پر ڈالنا چاہتے ہیں۔ ملکی قرضہ 6,000 ارب سے 30,000 ارب پر پہنچ گیا۔ 30 سال سے ملک لوٹنے والوں نے پوری کوشش کی کہ کسی طرح NRO مل جائے۔ شیخ رشید کا عمران خان کو اسی اسمبلی سے وزیر اعظم بنوانے کا دعویٰ۔ ملتان جلسے سے خطاب میں کہا کہ جس نے پلان بنایا تھا وہ سمجھا تھا خان گھر بیٹھ جائے گا۔ عمران خان نہیں جائے گا، سب کو گھر بھیجے گا۔ کپتان حکم کرے تو جان پر کھیل جاؤں، کل ہی بہادر آباد چلا جاؤں۔ ایک ووٹ کا مسئلہ ہے، وہ ایک ووٹ تو بغیر پیسوں کے دے دیں گے۔ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں کہ آج عمران خان کی مقبولیت آسمان کو چھو رہی ہے۔ آج ٹکٹیں مانگنے والوں کی لائنیں لگی ہیں۔ 2/3 اکثریت سے جنوبی پنجاب صوبہ صرف عمران خان بنائے گا۔ ملتان پار شو میں عوام کا جوش و جذبہ عروج پر رہا۔ خواتین، بچے، بوڑھے اور جوان سبھی نے بڑھائی پنڈال کی شان۔ لوٹے ہو گئے کھوٹے، 25 اراکین پنجاب اسمبلی نااہل قرار۔ الیکشن کمیشن کا بڑا فیصلہ، 25 منحرف اراکین کے خلاف ریفرنس منظور۔ اراکین کو ڈی سیٹ کرنے کا حکم۔ حمزہ شہباز اکثریت کھو بیٹھے۔ نااہل ہونے والوں میں 18 کا تعلق جہانگیر ترین گروپ، 5 کا علیم خان گروپ اور 2 کا تعلق اسد کھوکھر گروپ سے ہے۔ الیکشن کمیشن نے تحریری فیصلہ جاری کر دیا، لکھا اراکین کے خلاف ریفرنس آئین کے آرٹیکل 63A1 پر پورا اترتا ہے۔ مخالف کو ووٹ دینا پارٹی سے دھوکے کی بدترین شکل ہے۔ چیف الیکشن کمشنر کا کہنا ہے فیصلہ اتفاق رائے سے کیا گیا۔ تحریک انصاف کے ریفرنس پر الیکشن کمیشن نے 17 مئی کو فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ وکیل پی ٹی آئی فیصل چودھری کہتے ہیں سمیع اللہ کیس کی روشنی میں یہ تاحیات نااہل ہوں گے۔ حمزہ نے ریت کے اوپر جو بلڈنگ تعمیر کی تھی اسی میں خود یہ دفن ہو کے تو فارغ ہو گئے۔ میں عمران خان صاحب کا کینڈیڈیٹ ہوں۔ حلف لینے کے بعد اگر عمران خان صاحب کہیں گے میں آدھے گھنٹے میں اسمبلی توڑ دوں گا۔ عمران کا سپاہی ہوں، وزیر اعلیٰ کے لیے اس کا امیدوار ہوں۔ منتخب ہونے کے بعد اسمبلی توڑنے کا کہے تو آدھے گھنٹے میں توڑ دوں گا۔ آج ملتان میں عمران خان تاریخ دیں گے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی کی ARY نیوز سے گفتگو، کہا حمزہ شہباز تو گیا، وفاقی حکومت کا بھی دھڑن تختہ ہونے والا ہے، تھوڑا انتظار کریں، اب یہ کمپنی چلنے والی نہیں۔ الیکشن کمیشن کے فیصلے کا پنجاب حکومت پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ 25 لوگوں کے ڈی سیٹ ہونے کے بعد بھی نون لیگ اتحادیوں کی تعداد 177 اور مخالفین 172 ہیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کا دعویٰ، کہا فورن فنڈنگ کیس کا فیصلہ 8 سال سے نہیں آیا، منحرف اراکین کا 1 ماہ میں آ گیا۔ آج جو چیف الیکشن کمشنر کو سلام کر رہے ہیں پہلے استعفیٰ مانگ رہے تھے۔ نون لیگ کے دعوے بڑے مگر حقیقت مختلف۔ حمزہ شہباز کی صرف 172 اراکین کی حمایت رہ گئی۔ پی ٹی آئی اور قاف لیگ کے اتحاد کو 175 اراکین کی حمایت حاصل۔ نون لیگ کے ناراض رکن جلیل شرک پوری کہتے ہیں حمزہ شہباز کو ووٹ نہیں ڈالا، مریم اورنگزیب ہمیں اپنے ساتھ نہ گنے، الیکشن کمیشن کے فیصلے کے بعد مشورہ کریں گے۔ لوٹوں کی سیاست دفن، عمران خان کا بیانیہ سچ ثابت ہوا۔ اسد عمر کہتے ہیں کہ سازش کا ایک حصہ رول بیک ہوا ہے، اب پنجاب اسمبلی کے چلنے کا جواز ہی نہیں بنتا۔
फारूक हबीब कहते हैं कि छांगा मांगा की मंडियों का रास्ता हमेशा के लिए बंद हो चुका। पंजाब हुकूमत फारिग हो चुकी, वफाकी हुकूमत जल्द फारिग होगी। फवाद चौधरी ने कहा कि हमजा शहबाज इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद फौरी इस्तीफा दें। शाह महमूद कुरैशी ने लिखा, देर आयद दुरुस्त आयद। बिलाखिर इलेक्शन कमीशन ने लोटो को कैफरे किरदार तक पहुंचा दिया। जाली वजीर आला साहिब शेरवानी वापस लटकाने का वक्त हुआ चाहता है। शहबाज गिल बोले कि लोटे नाअहल हो गए जिनका ज़मीर मुर्दा हुआ था, आज सियासी तौर पर मुर्दा हो गए हैं। जो सपोर्ट इस लाडले को मिली थी, हमारी किसी हुकूमत को इसका 30% मिला होता, पाकिस्तान इस तरह रॉकेट की तरह ऊपर जा रहा होता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तान को रॉकेट की तरह तरक्की देने का मशरूत दावा। कहा, लाडले जैसी सपोर्ट का 30% हमें मिलता तो पाकिस्तान रॉकेट की तरह ऊपर जाता। क्या हमारी तकदीर में लिखा है कि हम गरीब और भिखारी रहें? हरगिज़ नहीं। हमें दिन रात मेहनत करना होगी, खून पसीना बहाना होगा। साबिक हुकूमत ने 3.5 साल कुछ न किया। शहबाज शरीफ का कराची ईवान सनत और तजारत की तकरीब से खिताब। बोले, पाकिस्तान कर्जों पर जी रहा है। 3.5 साल से आम आदमी को एक ढेले का रिलीफ नहीं दिया गया। गुज़श्ता हुकूमत ने संजीदगी के साथ काम नहीं किया, लेकिन कर्जों में 80% इजाफा कर दिया। वज़ीर आज़म का सोलर टेक्नोलॉजी पर 17% टैक्स खत्म करने का ऐलान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 10 जून को वफाकी बजट कौमी असम्बली में पेश करने की मंजूरी दे दी। नोटिफिकेशन जारी। वज़ीर आज़म की PNS बदर की लॉन्चिंग तकरीब में भी शिरकत। 1 महीना पहले तक कोई लोड शेडिंग नहीं। हमने कोविड भी सहा, इनकी बर्बाद इकोनॉमी को भी संभाला दिया। बर्बादी हुई है इकोनॉमी की तो इन्होंने की है, दोनों ने मिलकर। ये PTI की हुकूमत ने नहीं की। साबिक वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दावे मुस्तरद कर दिए। बोले, नून लीग बिजली के प्रोजेक्ट इम्पोर्टेड फ्यूल पर लगा कर चली गई। हम जब तक हुकूमत में थे कोई लोड शेडिंग नहीं थी। इमरान खान ने 10 बड़े डैम्स शुरू कराए। गन्ने के रिकॉर्ड 75 लाख टन फसल हुई। हमारे दौर में ग्रोथ रेट 6% और एक्सपोर्ट भी बुलंद सतह पर रही। कर्जा बढ़ा है तो शरह नमू भी तो 85% बढ़ी है। ARY न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि हमारे दौर में बिजली लोड शेडिंग थी ही नहीं। लोड शेडिंग तो इन्होंने शुरू की है। मईशत बर्बाद तो कसूरवार हम नहीं, पीपल्स पार्टी और नून लीग है। डॉलर का उरूज, रुपए का ज़वाल, मईशत निढाल, दावे, ऐलानात, इजलास और बयानात सब रायगा। इंटरबैंक में डॉलर मजीद 14 पैसे महंगा, 200 रुपये 14 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 202 रुपये में फरोख्त। पाकिस्तान और IMF में दोहा में मुज़ाकरात का तीसरा रोज़। पाकिस्तान ने पेट्रोलियम मसनूआत पर सब्सिडी में कमी के प्लान से आगाह कर दिया। पेट्रोल मरहलावार महंगा करने का भी प्लान दिया। गैर ज़रूरी अखराजात में कमी के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ पर बातचीत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कराची से लाहौर जाएंगे। अहम इजलास बुला लिया। हमजा शहबाज और सीनियर रहनुमा भी शरीक होंगे। कानूनी माहिरीन भी मुशावरत के लिए तलब। ज़राए का कहना है कि आइंदा की हिकमत अमली से मुतालिक मामलात ज़ेर गौर आएंगे। रात गए अहम इजलास में हतमी फैसले किए जाने का इम्कान है। नून लीगी क़यादत बड़े फैसलों के लिए हिमायत न मिलने पर मायूस। नवाज शरीफ ने हुकूमत छोड़ने का सिग्नल दे दिया। ज़राए के मुताबिक 2 अहम क़वानीन की मंजूरी के बाद कौमी असम्बली तहलील करने पर गौर। नैब क़वानीन में तरमीम, इलेक्शन इस्लाहात रवां इजलास में मंजूर कराने का फैसला। नून लीग सियासी इस्तेहकाम और बड़े फैसलों के लिए गारंटी चाहती है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान पर हमले का खतरा, थ्रेट अलर्ट जारी। आला हुकाम ने इमरान खान के चीफ ऑफ स्टाफ शहबाज गिल को आगाह कर दिया। ज़राए का कहना है आला हुकाम की इमरान खान की सिक्योरिटी मजीद सख्त करने की हिदायत। PTI की जानिब से इमरान खान की सिक्योरिटी मजीद सख्त कर दी गई। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आम इंतखाबात की तैयारियां शुरू कर दी। मुल्क भर में गैर हतमी इंतखाबी फहरिस्तों की इशाअत के लिए डिस्प्ले सेंटर कायम। गैर हतमी इंतखाबी फहरिस्तें वोटर्स अपने और अहल खाना के नामों के इंदराज कवायफ की जांच पड़ताल कर सकते हैं। डिस्प्ले सेंटर 21 मई से 19 जून तक खुले रहेंगे। शनाख्ती कार्ड के मुस्तकिल या आर्जी पते पर वोट का इंदराज और कवायफ की दुरुस्तगी भी करवाई जा सकती है। कौमी असम्बली के लिए राजा रियाज अपोजिशन लीडर मुकर्रर। स्पीकर कौमी असम्बली ने मंजूरी दे दी। राजा रियाज को 16 मेंबरान की जानिब से हिमायत हासिल थी।
कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट बाज़ाबता नोटिफिकेशन जारी करेगी। जमात इस्लामी का कराची वाटर बोर्ड की नाअहली के खिलाफ शराय फैसल पर धरना, शुरका के कराची को पानी दो के नारे। मुजाहिरीन ने कहा कि वाटर बोर्ड की नाअहली से शहर में पानी का बहरान पैदा हुआ। वाटर टैंकर के लिए पानी दस्तयाब और घरों में नलके सूखे हैं। वाटर बोर्ड इंतजामिया का पानी चोरों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन। चीफ सिक्योरिटी अफसर का कहना है कि जिला गरबी में मुतअद्दिद गैर कानूनी कनेक्शन काट दिए, सैकड़ों फुट पाइप्स वॉल्स आलात कब्जे में ले लिए। मरियम नवाज की सरगोधा जलसे से खिताब में एआवाई न्यूज़ को धमकियां। मरियम नवाज की धमकियों ने एआवाई न्यूज़ के हजारों कारकुनों को खतरे में डाल दिया। एआवाई इंतजामिया की मरियम नवाज के इल्जामात और धमकियों की मजम्मत। कहा, एआवाई न्यूज़ का काम अवाम के मसाइल उजागर करना और सच दिखाना है। एआवाई न्यूज़ हक का फरीजा जारी रखेगा। किसी वर्कर को नुकसान पहुंचा तो मरियम नवाज के खिलाफ एफआईआर कटवाएंगे। मुल्क भर की सहाफती तंजीमों की मरियम नवाज की धमकियों की मजम्मत। शहर शहर सहाफियों का एहतजाज। पीएफयूजे के नायब सदर लाला असद पठान ने कहा, मीडिया आईना है, जो करोगे वही दिखाएगा। स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज इलाही की मरियम नवाज की धमकियों की मजम्मत। वज़ीर आज़म के बाद वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज का आवाम को लॉलीपॉप। पंजाब में आटा और चीनी की कीमतों में कमी के हवाई ऐलानात। पंजाब में चीनी 100 रुपये फ़ी किलो पर दस्तयाब। 10 किलो आटे का थैला 650 रुपये पर फ़रोख्त। हमजा शहबाज 10 किलो आटे का थैला 490 रुपये में फ़रोख्त करने का हुक्म। मिल्स एसोसिएशन का कहना था कि पंजाब में चीनी की फैक्ट्री प्राइस 89 रुपये है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की लाहौर की खुसूसी अदालत में कल पेशी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज समेत मुल्ज़िमान गुज़श्ता 4 पेशियों पर अदालत नहीं आए। शहबाज शरीफ पर फर्द जुर्म आयद ना हो सकी, कल फर्द जुर्म आयद होने का इम्कान। रावलपिंडी और कराची कोर में अफसरों जवानों को एजाज़ात देने की तकरीब। रावलपिंडी कोर में 89 अफसरान को तमगा इम्तियाज मिलिट्री, 36 अफसरों को सितारा इम्तियाज मिलिट्री और 19 को तमगा बसालत से नवाजा गया। कराची में 11 अफसरों को सितारा इम्तियाज मिलिट्री, 15 को तमगा इम्तियाज मिलिट्री और 10 को तमगा बसालत से नवाजा गया। नवाबशाह में सहाफ़ी अजीज़ मेमन कत्ल केस का मरकजी मुलजिम मुश्ताक सैतो गिरफ्तार। गिरफ्तारी खुफिया इत्तला पर की गई। मुलजिम ने अजीज़ मेमन को 2 साल कबल साथियों के साथ मिलकर कत्ल किया था। दुआ सहरा का निकाह मैंने नहीं पढ़ाया, निकाह ख्वां का अदालत में इंकशाफ। अगवा केस में निकाह ख्वां और गवाह अदालत में पेश। दोनों मुलजिमान 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। तफ्तीशी अफसर से पेशरफ्त रिपोर्ट तलब। निमरा काज़मी की बाजियाबी से मुताल्लिक केस सिंध हाई कोर्ट बरहम। निमरा को 25 मई को पेश करने का हुक्म। जुडिशल मजिस्ट्रेट जनूबी में पसंद की शादी पर लड़की के शौहर और देवर के खिलाफ अगवा का मुकदमा खारिज, रिहा करने का हुक्म। हमजा शहबाज के इंतखाब को कलअदम करार देने की दरख्वास्त लाहौर हाई कोर्ट में समाअत के लिए मंजूर। समाअत 25 मई को होगी। एडवोकेट जनरल पंजाब अहमद अवैस को काम करने से रोकने के खिलाफ दरख्वास्त पर चीफ सेक्रेटरी समेत तमाम फरीक़ैन से जवाब तलब। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि कभी ऐसे तनाज़े नहीं देखे जो अब शुरू हो चुके हैं। एडिशनल एडवोकेट जनरल से पूछा कि सेक्रेटरी कानून कैसे आपको इख्तियारात दे सकता है, आपको ये हक नहीं था कि उनकी जगह जिम्मेदारी निभाएं। साबिक गवर्नर पंजाब का बरतरफी के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू। उमर सरफराज चीमा की दरख्वास्त पर आयद एतराज़ात दूर। लार्जर बेंच तश्कील दे दिया गया। समाअत मंगल तक मुलतवी कर दी गई। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें,
अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिक़ा खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज़ वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज़ इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज़ पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।